Okay, so very good afternoon. Let's start the class with the first question. The first question is when the United Nations formed. United Nations जो है वो कब फॉर्म हुआ था? So everyone will quickly write in chat message. मैसेज में जल्दी से चैट में सभी आंसर करने का कोशिश करेंगे कि when the United Nations फॉर्म, यूनाइटेड नेशन जो है ये फॉर्म ओके ओके एज आई कैन से विज्ञान मनन these are the students who has answered. Anyone else? कोई और आंसर करना चाहेंगे? Okay, as I can see, the maximum answer is coming as like B. Okay, so let us see the B option is correct or not exactly. Option number B, that is 24th October 1945. is absolutely correct answer. So 24th October 1945 United Nations formed, right? Okay, let us come to the next question now, which is question number 2. Question number 2 is who appoints the Chief Justice of India? The Chief Justice of India जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? Options are public, president, governor or CM. So quickly tell me and answer as A, B, C or D. I can see maximum of the students are saying option number B only. So let us see which is the correct. Exactly, option number B, that means president is the correct answer. So president is the person who appoints Chief Justice of India. Okay, coming to the next question, that is how many states are there in India? अगर आप लोग बुक देख के करोगे तो आंसर गलत हो सकता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. Exactly, I can get the answer. Anyone else? Yes, A, option A, 28 is absolutely correct answer. So 28 states are there, and it may be asked for the Union territories also. So instead of state, कभी-कभी पूछता है how many union territories are there. Then what will be the answer? क्योंकि यहाँ पे बुक में हमारा दोनों गलत दिए हुए हैं. गलत नहीं है, मीन्स इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डेटा. पहले इतना ही था, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक्सक्लूड हो जाने की वजह से एक जो है इसमें स्टेट्स में घट जाता है और एक इसमें ऐड हो जाता है. ठीक है, एग्जैक्टली, देन 8 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is who is the supreme commander of army, air force and navy? There are three types of forces we have. एक तो होता है जो पानी में रहते हैं, I mean रहते मतलब पानी का फोर्स है, और एक जो है जो बॉर्डर में रहते हैं, जो इस तरह से नॉर्मल ये में पोस्टिंग होता है, और एक होता है एयर में जो नेवी जिसको एयरफोर्स. तो ये तीन तरह का जो आर्मी है, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इसका जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी एवरीवन. आई कैन सी A and B is coming as the answer, but A is the correct answer here. The president. President is only one who is the supreme commander of all these three things. Okay. Now moving to the next question. Question number 5. What is the full form of UNICEF? UNICEF.
So we have learned about the UNICEF. So quickly, everyone check it out and tell me what is the full form of UNICEF. See, UNICEF का जो full form दिया गया है, ये सारा काफी डिफिकल्ट है समझना. अच्छे से अगर आप लोग नहीं देखते हो तो गलत हो सकता है हड़बड़ी में. तो जल्दी से अच्छे से देख के सभी बताएं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. इज इट यूनाइटेड नेशंस इंटर चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंक्शन, और यूनिक नेशंस इंडियन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड? Exactly, option number B, which is United Nations International Children's Fund, is absolutely correct answer. Okay. Moving to the next question, that is question number 6. When the Second World War started, यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ था इसके बारे में पूछा गया है, जो कि हो सकता है आप लोग का बुक में नहीं दिया हुआ हो, लेकिन हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था. That is why this question may be this type of questions asked कि कब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है, कब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खुद खत्म हुआ है. सो इस तरह का सवाल जो है ये पूछा जा सकता है. Okay, I can see the answers I am getting as like A, B, C. So इस तरह से options आ रहे हैं, answers आ रहे हैं. So let us see what is the correct answer. Exactly, 1939 is absolutely correct answer, which is option number C. So 1939 में ये Second World War start हुआ था, और अगर पूछा जाए कि end कब हुआ था तो क्या होगा? What will be the answer if it is asking when the Second World War end? Second World War खत्म कब हुआ था? Exactly, it's 1945. So 1945 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जिसके बाद हम लोग का जो है यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, राइट? हाँ, सो अगर डेट के साथ अगर लिखोगे तो इस तरह से 24 अक्टूबर 1945 आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? बट अगर स्टार्ट हुआ है कब तो पूछा जाए तो इट विल बी 1939. Now, which organs of UN make all policies of the United Nations? So, United Nations का जो policies होता है वो कौन सा organizations है, कौन सा organs है UN का जो policy make बनाते हैं? So, which organs is that? Quickly tell me, everyone. Which organs should the United Nations make all the policies? जो policies बनाते हैं वो कौन सा organs है? A, B, C और D? Exactly, it's General Assembly, option number A. So option number A is absolutely correct answer. It's General Assembly which makes all the policies of the UN, right? Coming to the next question, which is question number 8. Suppose how many members of legislative assembly, so the members of legislative assembly और MLA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका इलेक्शन जो होता है वो कितने साल के लिए होता है, that it is asking. So quickly tell me everyone, for how many years the MLAs are elected for? I am getting answer as like D. So anyone else want to answer? कितने साल के लिए MLA का इलेक्शन होता है? मतलब अब जब एक बार एमएलए का चुनाव होता है वो कितने साल के लिए काम करते हैं? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हिच इज फॉर 5 इयर्स. तो 5 इयर्स के लिए जब भी एमएलए का इलेक्शन होता है दे वर्क. ओके, आफ्टर देन इफ वी डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल व्हिच कोर्ट फंक्शंस, कौन सा कोर्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं? So very easy here, from the term also you can understand. Instead of district level it can ask for the state level also, कि state level में कौन सा कोर्ट काम करता है, ठीक है? और it can be asked for the national level also. तो इस तरह से क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है कभी भी कहीं भी.
in options also, in questions also. So it is asking in district level. So in according to this, definitely option number A, that is district code, is correct answer. But if it is asking for state level, then what will be the correct answer? For state level, suppose instead of district, it is a state level. Exactly. For state level, it will be a high court, and for national level, it will be Supreme Court. Okay. So highest court is Supreme Court, जो कि previously टेस्ट में भी पूछा गया था. ठीक है. चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. दैट इज सपोज क्वेश्चन नंबर 10, विच इज आस्किंग विच ऑर्गन्स वर्क्स टुवर्ड इंप्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का जो सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस होता है उसका इंप्रूवमेंट के लिए यूएन का कौन सा ऑर्गन्स काम करते हैं या कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं. यूएन का जितने भी ऑर्गन्स है उसमें से कौन सा ऑर्गन्स है जो इकोनॉमिकली कंडीशन को टेक करने के लिए काम करता है. Yes, from the term also you can keep in mind the Economic and Social Council is absolutely correct answer, which is work for the economic conditions of the world or social to improving the social conditions of the world. ठीक है, वेरी नाइस. इसमें क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा इस तरह से कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क फॉर. तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल किस लिए काम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस काफी सारा दिया हुआ रहेगा कि हेल्थ सेक्टर में दिया हुआ रहेगा, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के लिए दिया रहेगा, या तो चाइल्ड प्रोटेक्शंस का दिया हुआ रहेगा. तो उस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, so that type of questions also we will learn. So let us go further with the next question. So economic and social council of this answer is correct answer. If we are talking about the next question, which is asking which of the following country is not a permanent member of UN Security Council. UN हम लोग ने पढ़ा था UN Security Council के जो है कुछ परमानेंट मेंबर है. कभी कभी ये भी पूछा जाता है कितना परमानेंट मेंबर है. तो 5 परमानेंट मेंबर्स है यूएन का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में से. तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कंट्री है इसमें से जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है. एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए विच इज इंडिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे यूएसए, चाइना और रसिया तीनों जो है वो परमानेंट मेंबर है. ठीक है, अगर इसमें से और एक तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी, और उसमें से सपोज और 2 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें दिया रहेगा वो परमानेंट मेंबर नहीं है. तो उसमें से जो परमानेंट होगा वो आपको लिखना है. तो इस तरह से 5 परमानेंट जो नेशंस है उसको आपको माइंड में रखना है. ठीक है, ताकि कभी भी कहीं भी कुछ तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाए आप आंसर कर सको. So India is the correct answer here. Question number next it is asking is which of these states have both legislative assembly and legislative council. तो यहाँ पे कुछ जो है स्टेट्स है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं. तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जिसमें दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. यस, इट्स बिहार है. इसके अलावा बिहार के अलावा कुछ और भी ऑप्शंस कभी कभी रह सकता है जो जिसमें 2 काउंसिल है. जैसे हम लोग ने पढ़ा है उसमें है आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और उसके अलावा तेलंगाना है. ठीक है, तो ये सारे कुछ स्टेट्स है जिसमें 2 जो है काउंसिल है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. ठीक है, तो हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए Bihar will be correct answer. Okay. Moving to the next question, which it is asking the Constitution of India. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इसमें आया था, कम इनटू इफेक्ट, कब से ये लागू है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये. So option number B I am getting as answer from some of the students as like Abhigyan, Vidya, Isa, Ayushi, Manan.
Okay. Yes, exactly. It's 26 January 1950. 26 January 1950 is the correct answer. From where or in this particular date, the Constitution of India formed and it came into effect. Okay. So till now, whatever we have discussed, I hope everyone understood. We can go further. हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या किसी को कुछ टॉपिक में अगर डिस्कस करना है, डाउट है, so you can ask so that we can discuss about it. Okay. So moving to the next question. It is asking all the citizens of India above which age have right to vote. हम लोग का जो वोट करने का अधिकार है वो सबका नहीं है, एक पर्टिकुलर एज से अबव जब हो जाते हो तभी हम लोग वोट कर सकते हैं. तो ये हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दैट एज फ्रॉम विच एज वी कैन गिव द वोट. Exactly, it's option number C, which is 18. So 18 से above जब हो जाते हैं तो we are eligible to give the vote. Okay. Moving to the next question, it is asking who is the head of the government of India. यहाँ पे confusion होता है थोड़ा सा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि head of the government of India और कभी कभी पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब होता है जब भी कुछ नियम वगैरह बनाना रहता है, कुछ रूल्स वगैरह लागू करना रहता है, तो वो बिना प्रेसिडेंट का साइन किए हुए या उसका जो हेड होते हैं दैट इज प्रेसिडेंट, जो कि हमारा प्रीवियस टेस्ट में पूछा गया था. ठीक है. बट यहाँ पे जब सरकार का बात आता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देन दैट इज द प्राइम मिनिस्टर. एग्जैक्टली. So option number B, Prime Minister, is absolutely correct answer for the case of Government of India. But if it is asking for the constitutional head, then it will be President. तो constitutional head भी पूछा जा सकता है या तो government का भी head पूछा जा सकता है. ठीक है. Moving to the next question, that is according to DAS, किसके हिसाब से the child labor is prohibited in India. इंडिया में चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है, बंद है या ये सही नहीं है. अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू एजुकेशन. ए, बी, सी और डी. No, I am getting maximum answer as like D. I am giving one more options. So if it is not D, then what will be the best answer that you have to tell according to this? Right to education we have learned, but in right to education, before right to education we have learned something else, wherein child laborers and the girls protections के लिए काम करते हैं. So that I am asking about. So quickly try to answer everyone the correct. तो आप लोग के पास अगर बुक है तो आप लोग इसको एक बार निकाल लीजिए, जो हम लोग का राइट्स एंड इसके बारे में हम लोग ने जहां पे पढ़ा था, ड्यूटीज एंड राइट्स. इसमें आप लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक बार देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है. ऑफ सेकेंड पॉइंटर्स है वहां पे, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन द कंट्री. इट ऑल्सो प्रमोट्स चिल्ड्रंस एजुकेशन. सो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन का बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज द बेस्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. एग्जैक्टली. और अगर हम लोग राइट टू एजुकेशन का बात करें तो उसके हिसाब से सबका राइट्स है कि दे कैन गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 6 to 14.
सो 6 से लेकर के 14 तक का एज का जो है कंपल्सरी एजुकेशन जो है, दैट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, दैट इज द थिंग्स. बट चाइल्ड लेबर का अगर बात करें या वुमेन्स का जो है प्रोटेक्शन का बात करें, देन दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ओके, शोषण का जिसको अधिकार बोलते हैं. ठीक है, तो किसी का अनफेयरली यूज नहीं करना है और इस तरह से चाइल्ड लेबर नहीं करना है. ठीक है. If we are moving to the next question, that is asking according to which right we had the freedom to practice any professions or occupations. So हमारे पास ये अधिकार है कि हम लोग कोई भी professions या कोई भी occupations use मतलब कर सकते हैं हम लोग के हिसाब से. So वो किस हिसाब से है? Is it according to right to equality, right to freedom, or right to freedom of religion, or right to education? A, B, C, D. Which option is correct? I am getting answer from Isa, Vidya, like right to freedom. Anyone else? B, okay, Manan. Anyone else? Yes, so right to freedom जो है, that is absolutely correct answer. और इसके अलावा हमारा और भी कुछ rights है according to right to freedom, जिससे related भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि according to which rights we have the freedom to movement within the country, we have freedom to reside and settle in any part of the country. तो कुछ भी क्वेश्चन it may be asked, right? But the topic is same, that you need to keep in mind. So you have to learn about right to freedom. What are the freedoms we have according to this right? Okay.Moving to the next question, that is as per the Constitution of India, India का जो Constitution है इसके हिसाब से there are how many fundamental rights guaranteed to all the citizens? So कितने rights हमारा है according to the constitutions? Fundamental rights जो है, who is saying 5? अभिज्ञान, बेटा कहाँ पढ़े हो तुम 5? Yes, it's 6. Option number B, 6 is absolutely correct answer. So there are 6 fundamental rights. Sometimes it may ask for the instead of rights, it may ask for the duties also. So it may not be given in your book. So this is for your information. So if I am asking, is anyone aware about how many duties are there, fundamental duties are there according to the constitution? किसी को पता है कितना duties है? Anyone can tell how many fundamental duties we have according to the constitution? And anyone else? Manan is saying 5. Anyone else? कोई और? कितने ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज है? सेवरल फंडामेंटल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू बुक. कोई और बताना चाहेंगे कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है? ईसा, आयुषी, okay, it's okay, you have tried, that's all. 8. Nitish is saying 8. Anyone else? हम लोग का ये बुक में नहीं दिया हुआ है, but still the so if asked this type of questions, then it will be answer will be 11. Okay, so now let us moving to the next question. Which right allow every citizens of India to approach to the court for justice? So justice के लिए कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं. ये this is according to which rights we can go to the court for the justice?
सो हम लोग के पास ये अधिकार है कि हम लोग जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू which right? So quickly tell me everyone. I'm getting answer as like D. Manan, anyone else? Ayushi also D. Isa D. Yes, so जिसका भी आंसर डी है इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये राइट्स है. वी हैव राइट्स. वी कैन गो फॉर द कोर्ट फॉर जस्टिस इफ वी नीड. ओके. Next question is which agency help for fighting poverty and hunger around the world? So इसमें से कौन सा एजेंसी है जो हंगर एंड पॉवर्टी के लिए फाइट करते हैं, ये आपको बताना है. ऑप्शन नंबर डी FAO, फूड एंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा पॉवर्टी यानी गरीबी और हंगर यानी भूखमरी से जो है वो उस पे काम करते हैं. इसके अलावा हो सकता है हेल्थ सेक्टर के बारे में पूछे कि विच एजेंसी हेल्प फॉर और विच एजेंसी हेल्प इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. ओके. और which agency look after the public health and prevention of infections diseases. तो then that will be WHO. तो इस तरह से यूनिसेफ के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा है, ठीक है. सो द क्वेश्चंस कैन बी रिलेटेड टू दिस. और भी 20 क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग का डिस्कस करेंगे, ठीक है. यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया और किस तरह से क्या पैटर्न है क्वेश्चन का. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन यही आएगा. दीज आर द सैंपल ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ इट विल कम फॉर द रिवीजन पर्पस. ओके. सो क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली something different. So and the question may be from anywhere of the book, so you have to read the book properly. It should not be like कि आपका बैक में जो क्वेश्चन आंसर है उसी से आएगा. So जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ोगे, तब तक आप जो है अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे और नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है. So try to score better, answer correctly, think the question and answer properly before final submission. अच्छे से टाइम लेके अच्छे से समझ के आंसर देना है. कहाँ क्या चेंजेस रह जाएगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस के लिए गलती हो सकता है, स्पेशली इन बोथ द सब्जेक्ट, स्पेशली इन मैथ्स. ओके. सो विद दिस and my best well wishes, so we can end the today's class. If anyone having any doubts, you can ask. Okay. Okay. Thank you, everyone. Have a good time. Take care and bye bye.